एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स। 19 जुलाई 2021, ठीक 52 वर्ष पूर्व 19 जुलाई 1969 1969 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक राजनीतिक पॉलिटिकल डिसीजन, एक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक फ्रीडम taken by the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi। इसके पीछे राज, इसके पीछे कारण, इसके पीछे प्रायोरिटी सेक्टर, अनप्रिविलेज्ड लिफ्ट, जो वो बंधु, वो जो गरीब तबके के लोग जिनको बैंकिंग सेवाएं मुहैया नहीं होती थी, उनको एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा नेग्लेक्टेड सेक्टर था, आर्टिसन, इंडस्ट्री, सारे को बढ़ावा देने के लिए, रूरल सेक्टर्स को मजबूती प्रदान करने के लिए 1969 में 14 बड़े बैंकों का, जिनका बेस 50 करोड़ से ऊपर का था, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके पीछे उद्देश्य हम उन गरीब तबकों तक पहुंचना था जो वंचित थे, जो सुख सुविधाओं से वंचित थे। ये एक ऐसा डिसीजन था जिससे भारत का ओवरऑल डेवलपमेंट होना था। लेकिन ठीक 52 वर्ष बाद एक ऐसी सरकार जो प्राइवेटाइजेशन के लिए हिमायती है, जो अनाउंस करती अपने बजट में कि हम 2 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेंगे। फ्रेंड्स, अब वो दिन आ गया है जब आप चुप नहीं बैठना है, आपको आगे आना है। जैसा कि हमारे लीडर्स शांत बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एक तरह से कहिए कि दे हैव फेल्योर। लेकिन फिर भी AIPA ने अभी एक कैंपेन स्टार्ट करने के लिए बोला है, ऑब्जर्व द नेशनलाइजेशन डे ऑन 19 जुलाई 21। AIPA ने अपने एक सर्कुलर में लिखा, वी हैव ऑलरेडी गिवन द प्रोग्राम फॉर ऑब्जर्विंग द बैंक नेशनलाइजेशन डे ऑन 19 जुलाई 21। वी आर श्योर दैट ऑल आवर यूनिट्स हैव गॉट पोस्टर्स एंड बैजेस printed and supplied to our branch units and members। और साथ में ट्विटर कैंपेन on 19 जुलाई। We have also given the program of Twitter campaign on 19 July। We will forwarding the Twitter message and hashtag at 8 AM on 19 July। All of our unions are requested to be in readiness and to forward that message to all our members, and immediately thereafter we should commence our Twitter campaign। Besides our members sending the message from their Twitter account, we should forward and tag as many as important personalities, authorities, leaders, etc. Since they are tweeting and retweeting, the message will be immense importance and support to our campaign। All our unions should keep plans ready on Saturday and Sunday with the help of our young activists who are familiar with social media campaign, so that on Monday we can undertake the campaign successfully। यानी कि 19 जुलाई मंडे को। इसी के साथ एक UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का भी एक मैसेज था, वी शैल अंडरटेक ए ट्विटर कैंपेन टू स्ट्रेंथनिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Twitter message will be sent on 19th by 6:30 AM। We will start the campaign from 7 AM। Mr. S.K. Mandis, कन्वेनर UFBU। फ्रेंड्स, और इसके बाद से AIBA ने जुलाई में वेबिनार का आयोजन किया, यानी 1 जुलाई से उनका वेबिनार का आयोजन चल रहा है, जिनमें एमिनिएंट आप कह सकते हैं बैंकर्स, लीडर्स, सारे अपने व्यूज रख रहे हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे कुछ लीडर्स जिन्होंने अपने DMK के MP, CPI के MP से मुलाकात किया, और CPI के जनरल सेक्रेटरी डी राजा रोड टू द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन on Saturday, hitting or against the government proposal to privatize nationalized banks। In his letter, Raja said the finance minister had mentioned in her budget speech that the government has proposed to privatize 2 nationalized banks। Since privatization of any bank is not in the interest of our economy and people, we have expressed our strong opposition to the same, both inside parliament and outside। Our opposition to such privatization of banks is on account of the fact
that our banks today represent huge public saving of the common mass, and these precious savings are safe only if the banks are in the government control. The left leader pointed out that a large-scale failure of many private banks was the reason behind the move to nationalize banks in the first place, adding that the government is thinking about privatization of banks at a time when many private companies have turned out to be major loan defaulters. It would be prudent to hand over the banks to private banks, hands whose efficiency is also not guaranteed going by the recent experiences of some of the private banks. Nationalized banks have been greatly helping and supplementing the government's efforts to boost the economy, and hence need to be further strengthened with the adequate measures from the government. Raja said media reports have quoted a Niti Aayog recommendations proposing the names of the Central Bank of India and the Indian Overseas Bank for privatization. Even though these are the news items not authenticated by any official agency of the government, nonetheless, the same is creating a lot of anxiety and intrigues amongst the employees and officers of these two banks. I have learned that even some depositors are being withdrawn by the customers. Hence, it will be desirable for the government to make a statement clarifying the position, he added. In case the government has any such proposal to privatize any bank or party is opposed to such decision must be reviewed, and this told by the Communist Party of India secretary. फ्रेंड्स, इसके अलावा अभी हमारे कुछ ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन के लोगों ने मुलाकात किया डॉक्टर अमर पटनायक से. The representative of the all bank association submitted a representation against bank privatization and deinvestment yesterday evening to me and request to take it up with the honorable finance minister will take up. ये ट्वीट करके डॉक्टर अमर पटनायक जो उड़ीसा से हैं उन्होंने ये बताया. इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ वेफी एंड AIRRBA यानी कि ऑल इंडिया रूरल बैंक एम्प्लॉइज यूनियन के लोगों ने, जिसमें कॉमरेड के कृष्णन, CP कृष्णन एंड और सभी साथी थे, इन लोगों ने मुलाकात किया सीताराम येचूरी से, जनरल सेक्रेटरी CPI से, कॉमरेड के बालाकृष्णन तमिलनाडु स्टेट सेक्रेटरी से और अन्य डेलीगेट्स मुलाकात करके ये डिसाइड किया, ये प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट अपनी बात रखने के लिए, अपोज करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए कहा. फ्रेंड्स, इसके बाद वेफी भी एक आयोजन करने जा रहा है कि 53वें बैंक नेशनलाइजेशन डे यानी 22 जुलाई से वेबिनार का आयोजन अरेंज कर रहा है, जिसमें एमिनिएंट प्रोफेसर CP चंद्रशेखर, प्रोफेसर R राम कुमार, प्रोफेसर प्रभात पटनायक, कॉमरेड तपन सेन आदि विभिन्न लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने व्यूज रखेंगे. फ्रेंड्स, अब यहाँ बात ये आती है कि क्या ये गवर्नमेंट वेबिनार से, ट्विटर कैंपेन से हिलने वाली है? क्या AIBA पूरे महीने वेबिनार करने से साथ क्या इससे कुछ फ्रूटफुल नज़र आ रहा है कि हम अगर वेबिनार करके इमिनेंट लोगों के, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के या और प्रोफेसर इमिनेंट्स को बुला के हम अपनी बात रखेंगे तो इससे क्या गवर्नमेंट पे कोई असर पड़ रहा है, या गवर्नमेंट अपने प्राइवेटाइजेशन के आइडिया को ड्रॉप करने जा रही है? शायद नहीं. केवल वेबिनार करने से अथवा ट्विटर कैंपेन चलाने से शायद गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है तो ये डेलीगेशन, जिस तरह से हम कम्युनिस्ट पार्टी आपके या DMK के लोगों से मिल रहे हैं, इससे अगर हम रूलिंग पार्टी के लोगों से मिलते या फाइनेंस मिनिस्टर से डेलीगेशन मीट करते तो शायद कुछ बात बनती है. ऐसा मान लिया यूनियन वालों ने कि अब कुछ नहीं होने वाला है, केवल वेबिनार और ट्विटर कैंपेन करा के अपनी बात रख रहे हैं. शायद इसका हल इतना आसान नहीं है जितना कि ये लीडर सोच रहे हैं. फ्रेंड्स, पुनः आप लोगों को 19 जुलाई 2021 को नेशनलाइजेशन डे का बहुत बहुत बधाई, और आप ऑब्जर्व करिए राष्ट्रीय गीत.
राष्ट्रीयकरण का वो सुनहरा पल जो बैंकिंग इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को एक नया मोड़, एक नया दिशा दिया। हम यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी प्राइवेट सरकारी बैंक प्राइवेट ना हो और उसी रफ्तार से काम करती रहे ताकि इकोनॉमिक का ढांचा मजबूत होती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।